Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling today? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class that is an English for grade 4. We are learning unit number 9, air pollution. Yes, my dear teachers, I have divided this chapter according to these lectures, and I am going to deliver my lecture according to these. You can see that lecture number 1 under the title of grammar. We will learn about structure of sentences as SV and SVO pattern, and we will cover up page number 70. And lecture number 2 under the title of grammar, we will learn about compound words. We will cover up question number 6 on page number 70. Lecture number 3 under the title of grammar, punctuation, use of comma in different ways. So we will cover page number 69, question number 5. Lecture 4 under the title of pronunciation skills, we will learn different sounds of D. So we will cover up that page number 68 and 69. Under the lecture title of reading skills, we will cover up lecture number 5 through brainstorming ideas, and we will cover up that page number 65 and half 66 also we will cover. And lecture 6 under the title of comprehension and to learn, we will learn about dictation words. Yes, my dear students, and under the title of lecture 7, under the title of reading and writing, we will learn to collect ideas through brainstorming. So we will cover up page number 71, question number 9 and question number 10. Lecture 8A, reading and writing, we will learn about time on page number 72, question number 11. We will cover this page, my dear students and my dear teachers. Next, lecture 8B, listening and speaking, we will learn how to introduce self and others, and we will cover up that question number 12 on page number 73. Yes, lecture 9 under the title of writing, we will learn about narrative essay. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, my dear students, that Al-Quran verse number 286, and this is surah number 2, surah Al-Baqarah. Allah does not charge a soul except with that within its capacity. Yes, my dear students, ये ब्यूटीफुल वर्स हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि Allah does not charge a soul. Allah subhanahu wa ta'ala never put extra burden on that soul. That soul is not able to do that, to perform that. Allah never gives such duty to that human being, anyone that is not able to perform that duty. So Allah subhanahu wa ta'ala knows very well that which type of work, which type of burden, if he may give to that human being, so how he or she will be able to perform. So he knows everything very well. Yes, my dear students, unit number 9, air pollution, हवा की आलूदगी. Theme and sub-theme. What is theme? Environmental education. And what is the sub-theme of this lesson? Understanding and appreciation of natural environment. Yes, my dear students, what is the theme of this? Environmental education. Environmental education क्या होती है? हमारी माहौलियाती तालीम. जो हम माहौलियाती, और माहौल कौन बनाता है? हम इंसान ही बनाते हैं बेटा. हमारा माहौल कौन बनाते हैं? हम इंसान बनाते हैं. अच्छा बनाएं, बुरा बनाएं, कैसा बनाएंगे, ये हम इंसानों पे ही डिपेंड करता है. माहौल हमेशा हम खुद बनाते हैं. तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है और उसका रिलेटेड थीम क्या है. अंडरस्टैंडिंग, समझना, एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? कुदरती माहौल, जो अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से हमें दिया गया है, उस माहौल को. और कुदरती माहौल में क्या कुछ आता है? हवा, पानी, जमीन, ये सारा किस चीज में आता है बेटा? कुदरती माहौल में है, जो अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफे हमें दिए गए हैं.
ओके तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर यूनिट 9 एयर पोल्यूशन। ओपन करें बेटा अपनी बुक, पेज नंबर 65। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ। बी रेडी। आवर अर्थ, हमारी जमीन, इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जमीन किस चीज से कवर अप है? सराउंडेड की गई है, इर्द गिर्द लिपटी हुई है, किससे? कवर ऑफ एयर, हवा से, जो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर, जो कि फिजा कहलाती है। दिस कवर, ये कवर ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। ये कवर किससे बना हुआ है? बहुत सी गैसेस से मिलके बना हुआ है। इट हेल्प्स, ये क्या करती हैं? ये मदद करती हैं इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम एंटरिंग हार्मफुल रेडिएशंस एंड अलाउज लाइफ टू एग्जिस्ट। बेटा इसका काम क्या है? जो ये हवा की जो तह है, फजा के तौर पे हमारी जमीन के इर्द गिर्द कवर किया हुआ है उसने, उसका काम क्या है? उसका काम है जमीन को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना जमीन की। किस चीज से? हार्मफुल रेडिएशंस, जो सूरज की नुकसानदेह शुआएं जमीन पर पहुंचती हैं तो उनको रोकना है, जिसकी वजह से वो जमीन पे नहीं पहुंच पाती और जमीन पर रहने वाले जानदार महफूज रहते हैं। तो इसका ये काम है। एयर इज पोल्यूटेड, हवा आलूदा होती है। कब आलूदा होती है? व्हेन गैसेस, जब गैसें, डस्ट पार्टिकल्स, किस चीज के ज़रात? मट्टी के ज़रात, डस्ट पार्टिकल्स मट्टी के ज़रात, एंड स्मोक, और धुआं, मिक्स्ड, शामिल हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर टू मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जब धुआं हवा में बेटा शामिल होता है, धुआं शामिल होता है, डस्ट पार्टिकल्स मींस मट्टी के ज़रात शामिल होते हैं, और क्या होता है? डिफरेंट गैसेस मींस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस मिलके जब हवा में रिलीज होती हैं तो हवा क्या हो जाती है? आलूदा हो जाती है। और जब हवा आलूदा होती है तो वो किन के लिए नुकसान का सबब बनती है? डेफिनेटली ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, एंड प्लांट्स, और पौधों के लिए। जानदार जितनी भी अशिया हैं उन सब के लिए हवा क्या है? वो आलूदा बनकर नुकसान का सबब बनती है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्या बताया जा रहा है? एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी, कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शंस। दोनों एक्शन से ये हो सकती है कि इंसान भी इसमें अपना किरदार अदा करते हैं हवा को आलूदा करने में, और कुदरती तौर पर भी ये हो सकती है। आगे देखते हैं कि नेचुरल, कुदरती तौर पर ये कैसे होती है। नेचुरल इवेंट्स, कुदरती इवेंट्स, कुदरती आफात दैट पोल्यूट, जो आलूदा करती हैं द एयर, हवा को, इंक्लूड फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात में आग लगना। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ऑलरेडी मार्गला की पहाड़ियों में आग लग चुकी थी, तो वो ये फॉरेस्ट फायर्स उसी के हवाले से है कि ये फॉरेस्ट फायर्स भी हवा को आलूदा करते हैं। विंड, रेन, और हवा का कटाव मींस जब हवा इतनी तेजी से चलती है और जमीन की डस्ट जो है वो अपने साथ उड़ा के आती है, हवा में शामिल करती है, तो उसे विंड रेन कहते हैं। पोलन स्प्रेडिंग, पोलन स्प्रेडिंग बेटा कहते हैं जब फूलों में से, तो ये फूलों से ये जो मादनियात और उसके बीज और उसकी चीजें, ये पोलन गिरती है जमीन, हवा में फैलती है, तो वो भी हवा को आलूदा करती है। वोल्केनिक आउटब्रेक्स, वोल्केनिक आउटब्रेक्स ये माउंटेन आउटब्रेक्स होते हैं जिनमें पहाड़ क्या होता है? हीट की वजह से, आतिशफिशां की वजह से जब पहाड़ फटता है तो उसका धुआं, उसका लावा हवा में शामिल होता है और हवा को आलूदा करता है। एवापोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नामियाती मुरक्कबात के एवापोरेशन, आबी बुखारात जो हवा में शामिल होते हैं, एंड नेचुरल रेडिएशंस, और कुदरती शुआएं जो कि सूरज से निकलती हैं। तो ये सारी कौन सी बेटा, ये कौन से हैं एक्शन? नेचुरल एक्शन जो कुदरती तौर पर होते हैं और हमारी हवा को क्या करते हैं? आलूदा करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेजर काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेशली इन बिग सिटीज। बड़े शहरों में
ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की सरगर्मियां, मीन्स हमारी सरगर्मियां जो होती हैं ना, वो सबसे स्पेशली खास तौर पर बड़े शहरों में क्या करती हैं, मेजर काज, बड़ी वजह बनती हैं। एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी की बहुत बड़ी वजह बनती हैं। Yes, my dear students, open next page on your book, page number 66. So we are going to start next first paragraph on page number 66. Yes, my dear students, are you ready? Good. Factories, फैक्ट्रियां, पावर प्लांट्स बेटा होते हैं जहां ये बिजली बनाई जाती है, उनको कहते हैं पावर प्लांट्स। कार्स, एरोप्लेन्स, केमिकल्स फ्रॉम स्प्रे कैन्स and methane gas from landfills are the sources of man-caused air pollution. प्रीवियस उस पे पेज पे हमने नेचुरल काज पढ़े और यहाँ अब हमें मैन काज बताए जा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम इंसान फैलाते हैं। तो उनमें क्या क्या आता है, फैक्ट्रीज आती हैं, पावर प्लांट्स, गाड़ियां, एरोप्लेन्स, केमिकल्स फ्रॉम स्प्रे कैन्स एंड मीथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होता है बेटा, लैंडफिल्स में वो होते हैं जब हम डिफरेंट किस्म का मटेरियल जब हम गड्ढे खोद के जमीन में उसे दफना देते हैं तो वो लैंडफिल में आता है। तो वो भी हमारी एयर पोल्यूशन का, उसकी गंदगी, उसकी बदबू की वजह से वो हमारी हवा को आलूदा करता है। Also, the landfill is also a harmful process in which waste is buried into the land. जो अभी मैं बता चुकी हूँ आपको बेटा कि इसमें क्या होता है कि ये लैंडफिल हमेशा गड्ढे खोद के उसमें इसको दफना दिया जाता है, तो ये भी एयर पॉल्यूशन की वजह बनता है। वन ऑफ द मेजर रीजन, सबसे बड़ी रीजन क्या है, दैट कॉज एयर पोल्यूशन, जो हवा आलूदगी का सबब बनती है, इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या, कुदरती ईंधन इसकी सबब बनते हैं। तो कुदरती ईंधन में बेटा क्या कुछ आता है, आगे देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, कोयला, ऑयल, तेल एंड नेचुरल गैस और कुदरती गैस। इन सब में कुदरती गैस ये चीजें आती हैं फॉसिल फ्यूल्स में, कुदरती ईंधन में। व्हेन, जब वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स, जब हम क्या ये कुदरती ईंधन जलाते हैं। ऑल सोर्स ऑफ गैसेस रिलीज, हर किस्म की गैस क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है इन फॉसिल फ्यूल्स से इनटू द एयर। तो निकल के वो कहां जाती है बेटा, हवा में जाती है। काजिंग पोल्यूशन, आलूदगी का सबब बनती है। तो ये सारी चीजें किस चीज का सबब बन रही हैं, हवा में जा रही हैं। हवा में किस चीज का सबब बनती है, आलूदगी का। और जब हवा आलूदा होती है बेटा, डेफिनेटली आपको पता है हमारे लिए हमारी बेसिक नीड में क्या है, हवा, पानी। तो डेफिनेटली जब ये हवा में ये चीजें शामिल होती हैं और हम हवा में सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो हमें चाहिए कि हमें इन सब से गुरेज करना चाहिए और हमें अपना जो है ना कैरेक्टर निभाना चाहिए। हम जहां भी हैं हमें अपना किरदार निभाना चाहिए कि हम अपने मुल्क को, अपने एनवायरनमेंट को जहां हम हैं हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें उन्हें उसे नीट एंड क्लीन रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। सो लेट्स प्रॉमिस, अपने टीचर के साथ, मेरे साथ प्रॉमिस करें कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि जिसकी वजह से हम उसका हिस्सा बने और अपनी ही हवा को, कुदरती चीज़ों को जो अल्लाह ताला की तरफ से अजीम नेमत हैं, उनको बर्बाद करने का, खराब करने का सबब बने। ओके, आगे देखते हैं। द सब्सटेंस दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। तो ये वो सारे सब्सटेंस, जो वो सारे मवाद मिलकर जो हवा को आलूदा करते हैं, चाहे वो कुदरती हैं, चाहे वो इंसानों की सरगर्मियों से पैदा किए हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पोल्यूटेंट कहलाते हैं। स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स कौन सी होती हैं, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, वो क्या होती हैं, इज अनदर मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन। आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। इट कैन कॉज डिजीजेस, ये कौन सी बीमारियां पैदा करती हैं बेटा, आप गौर से सुनना है आपने। लंग्स कैंसर, लंग्स के कैंसर की ये सबब बनती हैं। मींस फेफड़ों के, लंग्स के जरिए हम सांस लेते हैं। तो डेफिनेटली जब हमारे सांस का निजाम ही ठीक नहीं होगा, सो हाउ वी कैन सर्वाइव, हम कैसे रह सकते हैं जिंदा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस के इन्फेक्शन, एंड अस्थमा और दमे जैसी बीमारी, हमारी सांस का। अस्थमा कौन सी बीमारी होती है बेटा, व्हेन वी आर फीलिंग डिफिकल्टी टू ब्रीथ, व्हेन वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ properly, so this such type of condition is called asthma. Minor effects
ऑफ एयर पोल्यूशन मीन्स छोटे असरात, बड़े तो बड़े हो गए लेकिन छोटे असरात भी इसके होते हैं एयर पोल्यूशन के। इंक्लूड इरिटेशन ऑफ द आईज, आंखों में जलन, इरिटेशन ऑफ आईज आंखों में जलन होना, नोज नाक में होना, एंड थ्रोट और गले में होना। और ज्यादा अगर बड़े इफेक्ट बाद में भी हो तो छोटे इफेक्ट जो सबसे छोटे इफेक्ट हैं, और ये कहने में छोटे हैं, अगर हमारी आंखों में इरिटेशन है सो इट्स नॉट अ माइनर इफेक्ट। हमारी आंखें हमारा नूर है और ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है, तो हमने इनकी हिफाजत करनी है। नोज जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, एंड थॉट हमारा गला जिसके लिए जरिए हम बोलते हैं, हमारी ये चीजें सारी इस प्रोसेस से गुजरती हैं। तो ये एयर पोल्यूशन हमारे इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स ऑफ द लंग ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं बेटा, आप हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हमेशा, जैसे आप हैं बढ़ते हुए बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनको भी ये फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली अगर हम पोल्यूटेड इलाके में रह रहे हैं तो हमारा फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट होगा। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऐसे इलाकों में रहना, ज्यादा वक्त गुजारना जहां एयर पोल्यूशन हो, जहां हवा आलूदा हो। तो वहां क्या होते हैं, बच्चों के लंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं और फेफड़े मुतासिर होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें इस काबिल बनाए कि अपने अपने मुल्क को, हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सके। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। अब ये देखिए इस पैराग्राफ में बेटा हमें क्या बताया जा रहा है कि हम कैसे कम कर सकते हैं। तो गौर से सुनना है, तो हमने अपना किरदार अदा करना है कि हमने एयर पोल्यूशन कैसे कम करनी है। कैन बी रिड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज, बहुत से तरीकों से ये रिड्यूस की जा सकती है, कम की जा सकती है। यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, गैस एंड ऑयल कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। कम से कम कुदरती ईंधन का जो है इस्तेमाल है वो हम कम से कम करें तो उससे कुदरती जो एयर पोल्यूशन है, हवा की आलूदगी है, वो कम की जा सकती है। गैस एंड ऑयल मीन गैस और ऑयल ये कुदरती ईंधन हैं। वॉकिंग ऑन फुट or riding a bicycle for short distances may help in controlling air pollution। अगर हम पैदल चलें, साइकिल चलाएं, मीन्स अगर हमने थोड़े फासले तक जाना है, अपनी गाड़ियां लेने की बजाय, बाइक्स लेने की बजाय हम पैदल चलते हैं या साइकिल पे चलते हैं, साइकिल चलाते हैं। सबसे अहम वॉकिंग ऑन फुट और राइडिंग अ बाइसाइकिल, दोनों चीजें हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी हैं और बहुत जबरदस्त हैं। ये हमारी फिजिकल फिटनेस में ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो ब्लड है वो जबरदस्त तरीके से सर्कुलेट करता है, और जब ब्लड सर्कुलेट करता है इन एन एग्जैक्ट वे, सो डेफिनेटली आवर हेल्थ इज सो गुड। सिमिलरली इसी तरह वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स, अपनी जाती गाड़ियों के इस्तेमाल से, फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस मींस दूर दराज इलाकों में जब हम सफर करते हैं तो हमें इससे भी गुरेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जाती गाड़ियां ना लेके जाएं। तो कैसे जाएं, आगे सोल्यूशन दिया हुआ है। गवर्नमेंट शुड एनकरेज people to use public transport and promote work from home culture to reduce air pollution। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा, सपोज अगर हम 10 लोग 20 लोग सफर कर रहे हैं तो हम एक ही गाड़ी में कर रहे हैं। अगर हम पर्सनल गाड़ी में सफर करते हैं 10-20 लोग तो इट मींस एट अ टाइम 10 to 20 गाड़ियां चल रही हैं जो स्मोक इमिट कर रही हैं, और जब वो स्मोक इमिट करती हैं तो डेफिनेटली एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। तो रीजन ये है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ये होगा कि हम एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में अपना किरदार जो है वो कम से कम अदा करें। सो वर्क फ्रॉम होम का क्या मतलब होता है, कोशिश करें कि हम अपना काम जो है अपने घर पे ही करें, अपने ही घर पे करें, कि हमें ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, हमें जाना भी पड़ता है, जाहिर है समटाइम हमने काम भी करने होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा काम घर से ही हो, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना कर सकते हैं अपना किरदार हवाई आलूदगी को कम करने में, तो हमें अपना प्रैक्टिकल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना वो प्ले करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। एयर पोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, क्या है ये, बहुत बड़ा मसला है। वी नीड टू ओवरकम, जिस पे हमने काबू पाना है, जिस पर हमें काबू पाने की जरूरत है। टू एंश्योर अ हेल्दी फ्यूचर, एक सेहतमंद मुस्तकबिल बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हवा की आलूदगी को कम करने की जरूरत है। यस बेटा, लेट्स होप एंड लेट्स प्रॉमिस टुडे
कि हम अपना किरदार हवा की आलूदगी को कम करने में जितना भी हो सकता है हम अपना किरदार निभाएंगे. So tomorrow we will start our first lecture of this chapter. See you tomorrow inshallah. Stay blessed. Allah Hafiz.